Welcome to We Learn Virtual Learning Network. Hello students, this is session number 20 of Constitution of India and Ethics. The chapter number is Human Rights Commission, Minorities Commission, Remedies Against Violation of Human Rights. Topics we are going to cover under it is Human Rights Commission, Minorities Commission, Remedies Against Violation of Human Rights. National Human Rights Commission India experiences in fulfilling mandate. महात्मा गांधी की एक ये बहुत ही important saying है. It has always been a mystery to me how men can feel themselves honored by the humiliation of their fellow beings. अपने ही फेलो बीइंग्स की बेइज्जती करके उनको डिसऑनर कर कर कैसे एक ह्यूमन बीइंग, कैसे हमारे देश के लोग अपने आप में खुशी महसूस करते हैं. महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि ये मेरे लिए हमेशा ही एक मिस्ट्री का विषय बना रहा. कमीशन हमारा जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आया to protect the human rights of human beings. Maybe it may deal with a number of matters. It was established under the Protection of Human Rights Act on 12th of October 1993. In distinct features of NHRC, it is an autonomous body. Then comes, it is independent. Powers of a civil court. It has powers of a civil court. छोटे मोटे decisions ये खुद ही कर सकते हैं. Authority to interim relief, temporary provisional relief भी ये provide कर सकते हैं. इनके पास ये authority भी है. It's a wide mandate. बहुत ही expanded mandate है ये. Monitor the implementation of recommendations. जो भी हमारे constitution में कुछ recommendations हैं रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, उन अधिकारों को बचाने के लिए जो भी हमारे को इम्प्लीमेंटेशंस करनी पड़ी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, अगर उनकी वायलेशन होती है तो उस केस में हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट करता है. द इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस commission or the another commission, that is minority commission, which are mutually contributory, both of them are mutually contributory. If human rights commission covers minorities rights also, means human right commission जो है minority right को भी cover करता है, and this in fact is very important for students to understand about human rights commission. And I would like to tell you that this commission was the इसके आगे भी, इसके फिर आगे सब कमीशंस भी बने हैं. जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एस्टैब्लिश्ड 2 फंक्शनल कमीशंस, one on human rights and other on status of women. It was decided that these commissions would be composed of state representatives. इसमें स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं. The Commission on Human Rights is now composed of 53 states elected by the Economic and Social Council. Functions क्या हैं कमीशन के? Functions: inquiring suo motu or on a petition presented by victims or persons on their behalf into complaints of. जब हमारा ह्यूमन राइट जो है वायलेट हुआ, उस केस में जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो एक्टिव हो जाता है. जहां भी हमारी जो भी हमारे पब्लिक सर्वेंट्स के थ्रू अगर कुछ नेग्लिजेंसी हो रही है हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको हमें पूरा देने में, तो वहाँ जो है हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्टिवेट हो जाता है. इंटरवीनिंग इन एनी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग एनी एलिगेशंस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पेंडिंग बिफोर कोर्ट्स विद द अप्रूवल ऑफ सच कोर्ट्स. कोर्ट से अप्रूवल लेकर अगर कुछ बहुत पुराने केसेस हमारे अभी पेंडिंग इश्यूज पड़े हैं जिसमें कि वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का, ऐसी एलिगेशंस लगी हुई हैं उन केसेस में, उन सब में जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्टिवेट हो जाएगा
to file proceedings in the High Court or the Supreme Court. Visiting under intimation to state governments, jails or other institutions under the control of state governments. जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जेल्स हैं, प्रिजन्स हैं, या फिर और कोई भी इंस्टीट्यूट जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, और उनको इंटीमेट कर देते हैं ये स्टेट को कि हम इन इंस्टीट्यूट्स को विजिट करेंगे. उनका पर्पस क्या है? पर्पस इज जहां भी पर्सन्स की रिफॉर्मेशन, पर्सन्स के राइट्स के लिए रिफॉर्मेशन की जरूरत है, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है, कोई प्रोटेक्शन की जरूरत है, चाहे वो इनमेट्स हों जेल के या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के, अगर उनकी लिविंग कंडीशंस को वो जो नॉर्मल लिविंग कंडीशंस है उनको नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, या फिर अदर सेफ गार्ड्स जो उनको चाहिए, जो उनको अदर प्रोटेक्शंस चाहिए, वो उनको नहीं मिल रही हैं, कोई भी ऐसा स्टेट का इंस्टीट्यूट, तो उनमें वो विजिट करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स. रिव्यू द सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेफ गार्ड्स दिए गए हैं या किसी लॉ में दिए गए हैं, उन सब सेफ गार्ड्स को रिव्यू करते हैं कि वेदर दीज थिंग्स आर अवेलेबल टू दीज पर्सन्स और नॉट. जहां उनके प्रोटेक्शंस की जरूरत होती है, उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है, वहां ये अपने मेजर, अपने इफेक्टिव वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं पर्टिकुलर मेजर्स की. Reviewing factors including acts of terrorism that inhibit the enjoyment of human rights and recommending appropriate remedial measures. बहुत सारे ऐसे हमारे इलाके हैं, माओवादी इफेक्टेड हैं, नक्सल इफेक्टेड हैं, जिन इलाकों में हमारे ह्यूमन बींग्स जो हैं अपने ह्यूमन राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, उनमें ये जाकर ऐसे पर्टिकुलर रेमेडियल मेजर्स बताते हैं ताकि ह्यूमन जो है अपने राइट्स को पूरी तरह एंजॉय कर सकें. स्टडिंग ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स एंड मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन. बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के, और फिर ये डिफरेंट अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए. अंडरटेकिंग एंड प्रमोटिंग रिसर्च, ह्यूमन राइट्स के फील्ड में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए दीज आर हेल्पफुल. दिस कमीशन इज हेल्पफुल. स्प्रेडिंग ह्यूमन राइट्स लिटरेसी अमंगस्ट various sections of society and promoting awareness of the safeguards available for the protection of these rights through publications, media, seminars and other available means. ये पब्लिक में भी अवेयरनेस प्रमोट करते हैं about various human rights, national human rights, और इसको प्रमोट करते हैं through various medias like publications, seminars, जो भी available means हैं उनके through. Encourage the efforts of non-governmental organizations and institutions working in the field of human rights, undertaking such other functions as may be considered necessary for the promotion of human rights. फिर इस फील्ड में इन्होंने मेजर अकम्पलिशमेंट्स भी की हैं, जैसे कि इनका सबसे बड़ा तो है रेसिज्म, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की है. रिलेटेड इनटॉलरेंस हेल्ड एट दरबान इन 2001, जो भी ऐसी कास्ट इनटॉलरेंस की आ जाती है उसमें भी इन्होंने ये सब चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश की है. इनके इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया इन्होंने वेरियस इश्यूज़ पे और उसको अकम्पलिश किया है. इन्होंने स्टेट ऑफ गुजरात में भी जो कम्युनल राइट्स हुए हैं, नरेंद्र मोदी के टाइम भी हुए हैं, उन सब पे भी कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशंस इन respect of situation following communal rights in Gujarat. Some major accomplishments in the field of economics, social and cultural rights. बहुत सारे मेजर अचीवमेंट्स इसमें भी हुए हैं. फिर उसके बाद हेल्थ केयर को लेके ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ. सबसे पहले जब तक हेल्थ नहीं ठीक होगी तब तक वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग, वी कैन नॉट अचीव सक्सेस इन आवर लाइफ. Enunciation of a national accident policy, establishment of central monitoring mechanism for emergency purposes, then preventing infant milk substitute act 2003 में जो बंद करना चाहते थे उसको इन्होंने फिर स्टार्ट किया. HIV AIDS related जो भी recommended to inbuilt mechanism for consent and testing. पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हाँ आई एम HIV पॉजिटिव,
फिर उसकी टेस्टिंग करना, फिर उनकी नॉन डिस्क्रिमिनेशन करना, जैसे कि सब जगह एम्प्लॉयमेंट में है, हेल्थ केयर में है या एडमिशन में है, कि इनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो with those people who are HIV affected, AIDS affected. फिर protection of women and children in vulnerable environments, public hearings for access to health care. हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो देयर इज अ प्लान ऑफ एक्शन टू टैकल फ्लोरोसिस, या फिर ड्रिंकिंग वाटर को लेकर है, या कोई और ऐसी वैक्सीनेशन करवाने की ज़रूरत है एक पर्टिकुलर स्टेट में, या कोई प्लेग इफेक्टेड एरिया या कोई पर्टिकुलर डिजीज इफेक्टेड एरिया है, उसमें पर्टिकुलर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, वो सब मास लेवल पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है एक्ट करता है. सम मेजर अकम्पलिशमेंट्स इन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इन्होंने सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स करे हैं पुलिस की वर्किंग में. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स सेल इन पुलिस हेडक्वार्टर्स, सबसे बड़ा इनका जो अचीवमेंट है. फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बहुत बढ़िया बना दी है, फोरेंसिक लैब्स बना दी हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया इन फोरेंसिक लैब्स में, फिंगरप्रिंटिंग से लेकर एवरीथिंग, फ्रॉम इवन द DNA टेस्ट ऑफ इवन अ सिंगल हेयर और एनीथिंग वी कैन डू इन आवर फोरेंसिक लैब्स नाउ, एंड वी हैव रीच्ड टू एन एडवांस लेवल. Visit to prisons, mental hospitals and government run homes, monitor non-discrimination in relief, rehabilitation and reconstruction to victims of violence and displacement. फिर ऐसे हमारी rehabilitation councils हैं या ऐसे institutes हैं जहाँ जो भी victims हैं, जो affect हुए हैं जिनकी life, उनको relief दिलवाने के लिए, उनको rebuild करने के लिए, reconstruct करने के लिए जो भी हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर मैकेनिज्म्स की ज़रूरत है, उनमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बहुत एक्टिवेट होकर काम करते हैं. और मेजर जो इनकी अचीवमेंट्स है, दैट इज़ बहुत सारे एक्ट्स हैं उनको रिव्यू किया है इन्होंने, जो कि लेजिस्लेटिव बिल्स हैं, एक्ट्स हैं. उसके अलावा टाडा, पोटा और बहुत सारे ऐसे टेररिज्म से जो रिलेटेड एक्ट्स हैं उनको भी रिव्यू किया है. Freedom of Information Act, Domestic Violence Bill, Child Marriage Restraint Act, then National Rural Employment Guarantee Bill, Food Safety and Standard Bills, इन सबको रिव्यू किया है इन्होंने. मॉनिटर भी बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे कि प्रिजन की कंडीशंस को, फिर प्रिजन में रहते हुए उनकी डेथ्स कैसे हो जाती हैं, कस्टोडियल डेथ्स पे इन्होंने स्पेशल कंसर्न शो करके उसको रिड्यूस किया है नंबर. हॉस्पिटल्स में मेंटली इल पेशेंट्स के साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए और कैसा हमारे देश में होता है, उस पर स्टेटस ऑफ बॉन्डेड एंड चाइल्ड लेबर सिचुएशन. जो हमारा चाइल्ड लेबर के ऊपर इश्यूज हैं उसके ऊपर इन्होंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये कुछ पर्टिकुलर एज को लेकर इसको कंसर्न करके कि इतनी एज के बाद ही चाइल्ड जो है वो एक पर्टिकुलर लेबर क्लास को ज्वाइन कर सकता है. होम्स रन बाय द गवर्नमेंट, देयर आर सर्टेन होम्स दैट ओल्ड एज होम्स आर देयर और चिल्ड्रन होम्स आर देयर. सो इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इन होम्स में पर्टिकुलर देयर आर सर्टेन रिकमेंडेशंस टू प्रिवेंट देयर राइट्स. These all are implemented by National Human Rights Commission. Then rights of internally displaced person, monitor Supreme Court guidelines on sexual harassment at workplace. Then encounter deaths, deaths of children in protection homes. इन सब issues से इन्होंने बहुत ही अच्छे से इन चीज़ों को मॉनिटर करा है और इनको मेजर अकम्पलिशमेंट्स भी हुई हैं. नाउ इश्यूज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, इसके हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. एक एक कैटेगरी को हम तीनों को एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले है राइट्स पर्सपेक्टिव फॉर गुड गवर्नेंस. एक अच्छी गवर्नमेंट एक लाने के लिए, एक अच्छा मतलब राज्य लाने के लिए बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ह्यूमन बींग्स को RTI एक लाया गया है जिसमें कोई भी ह्यूमन बींग अगर कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो उस एक्ट के थ्रू पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अपने बारे में, अपने किसी इंस्टीट्यूट के बारे में, किसी पर्टिकुलर इशू के बारे में ले सकता है. फिर ट्रांसपेरेंसी है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट. ह्यूमन बीइंग कैन, एनीबडी वेदर इट इज फ्रॉम माइनॉरिटीज और फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट और एनीथिंग, ट्रांसपेरेंट सिस्टम इन्होंने हमारे गवर्नमेंट का बनाया है. इफेक्टिव डिस्पोजल.
फिर जो भी कंसर्न्स हैं उनकी अच्छे से उनका यूज हो सके, क्विक रिड्रेसल हो सके, ड्रिल ऑफ इफेक्टिव डिलीवरी मैकेनिज्म्स, इफेक्टिव डिलीवरी हो सके, जो हमारे नए मैकेनिज्म्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो सके, इफेक्टिवली उनको डिस्पोज किया जा सके, ये सब चीज़ें ओनली पॉसिबल थ्रू द when we are protecting, when we are concerned with the issues in human rights. ये सब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन लेके आया. करप्शन एज वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स, करप्शन इश्यूज हैं, डिनायल ऑफ राइट्स, डिनायल ऑफ एक्सेस टू डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव, डिनायल ऑफ नॉलेज, डिनायल ऑफ पार्टिसिपेशन. बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों को मना कर देते हैं उनके अधिकारों का उनको बताने को, उनको पर्टिकुलर एक्सेस देने को किसी चीज़ को, उनका नज़रिया जो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव है उसको हम किसी ना किसी तरह से स्नब कर देते हैं, या डिनायल ऑफ नॉलेज, उनको नॉलेज नहीं प्रोवाइड करते, या किसी चीज़ में उनको पार्टिसिपेट नहीं करवाते हैं. राइट्स पर्सपेक्टिव, सेंटर स्टेज टू डेवलपमेंट एजेंडा. राइट्स का क्या नजरिया है? राइट टू एजुकेशन दी जाए, एक्सेस टू हेल्थ दिया जाए, राइट टू एम्प्लॉयमेंट एंड livelihood of some dignity, right to have potable drinking water, right for redressal of grievance from police and speedy justice. एक और कमीशन है हमारा, ऑल्दो इन दोनों कमीशंस का सेम ही फंक्शन है, बट एक और माइनॉरिटीज कमीशन है. माइनॉरिटीज कमीशन जो है ये भी इन्हीं चीज़ों में डील करता है, बट मेनली कंसर्न रहता है विद द people who are from the minority group. Minority Commission, among other things noted were the following: the fact that the different claims of persons belonging to minorities required a response specific to each situation. The fact that the inappropriateness of measures depends on whether minorities are dispersed or concentrated within particular area of a given country. The dangers of exclusion arising from ethnically based comments. The importance of providing for the inclusion of all communities and groups in situations where territorial decentralization of governance is pursued, the suggestion that greater focus should be placed on supporting regional strategies for minority cooperation, the suggestion that there is a need for further reflection on autonomist and integrative approaches to minority protection in multicultural societies. गवर्नमेंट हमारी ने एक ऐसे पर्टिकुलर वेलफेयर स्कीम्स या ऐसे पर्टिकुलर केयर स्टार्ट की है सो दैट माइनॉरिटीज हमारी को फील होना चाहिए दैट दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कल्चर एंड ईथोस ऑफ द सोसाइटी एंड द स्टेट. एम्फेसिस दिया गया है ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज, और इसमें हम स्पेशली कंसर्न है विद एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ माइनॉरिटीज के साथ. जो भी इंटरेस्ट हैं माइनॉरिटीज़ के, में कोई भी राइट्स हैं, मे बी उनकी लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ हैं या रिलीजन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो भी इश्यूज़ हैं माइनॉरिटीज़ के, दीज सो माइनॉरिटी कमीशन बना दिया गया बाय द स्टेट गवर्नमेंट. द स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन हैज़ बीन असाइंड द स्टेटस ऑफ फर्स्ट क्लास कमेटी. Minority Commission, constitutional rights and safeguards provided to the minorities in India. Constitutional safeguards for religious and linguistic, language को लेकर और religion को लेकर जो minorities हैं इंडिया के, उनके लिए safeguards बनाए गए. एक common domain, एक separate domain of rights of minorities provided in the constitution. And इंडिया का जो भी हमारा constitution है, that is multicultural interwoven. बहुत सारे कल्चरल बैकग्राउंड वाले लोग हैं, इनको आपस में इकट्ठा करके एक जाल, एक नेट बना दिया गया है, और जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है ऑफ इंडिया, उनको उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज अ माइनॉरिटी कमीशन. द फॉलोइंग स्कीम्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट, गिविंग स्पेशल कंसिडरेशन फॉर माइनॉरिटीज इन रिक्रूटमेंट टू पुलिस फोर्सेस. माइनॉरिटी कमीशन को एम्प्लॉयमेंट हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, उनमें उनकी पर्टिकुलर रिजर्वेशन कर दी गई है, उनको स्पेशल प्रेफरेंस दी जाती है, चाहे पुलिस फोर्सेस में उनकी रिक्रूटमेंट हो या कोई पर्टिकुलर गिविंग फेयर चांस टू माइनॉरिटीज इन डेवलपमेंटल स्कीम्स,
कोई भी हमारे देश की डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं उनमें भी फेयर चांस दिया जाता है माइनॉरिटीज को। फिर स्टूडेंट्स को ये चांस दिया जाता है टू स्टडी थ्रू देयर मदर टंग। फिर उनको अगर वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु टेक्स्ट सप्लाइंग टेक्स्ट बुक्स थ्रू तमिलनाडु टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, रनिंग टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन उर्दू, तेलुगु, मलयालम लैंग्वेज, और वेरियस प्लेसेस पे ये सारे इंस्टीट्यूट्स हमने खोल दिए हैं फॉर माइनॉरिटीज। नाउ द कंसर्न इज रेमेडीज अगेंस्ट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। Remedies relating to human rights are twofold, that is those remedies which are social and political, and those rights which are legal. Social and political remedies, सबसे पहले हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी ऐसी कैंपेन्स चला जाती हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स जहाँ भी वायलेट होते हैं उनको अवॉइड किया जा सके। एशिया में, इंडिया में, इन ऑल ओवर द कंट्री, स्क्रैपिंग ऑफ फॉरेन डेट्स। सबसे पहले तो हमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करनी है और अपने जो फॉरेन डेट्स हैं उनको जो है स्क्रैप ऑफ करना है। प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रिफॉर्म ऑफ सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी टू गारंटी justice and human rights in the context of modern circumstances. Remedies against violation of human rights. Legally कुछ ऐसे legal remedies बना दी हैं कि legal acts बना दिए हैं। फिर रीजनल मैकेनिज्म है, इनफॉर्मल मैकेनिज्म भी है, फॉर्मल भी मैकेनिज्म है और इंटरनेशनल लेवल का मैकेनिज्म भी है टू अवॉइड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नाउ देयर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू पीपल, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन, that is NHRC, and then examine the importance of minorities commission. minorities कहाँ पे important role play करते हैं उनके बारे में, what is the importance of minorities commission, क्या उनके main features हैं, क्या functions हैं, उसके बारे में आपको बताना है। This is all for this session. Happy we learning.